Hi, Prince. Can you hear me? Hi, good evening, sir. Loud and clear. Excellent, excellent. Let's wait for a minute or two and then we'll kick off. Meanwhile, I think we have some questions. So if you are ready, we can start and crack on. Um, Start with the standard disclaimer that this is purely a gupshup platform. We will be just answering random questions, discussing how the trends are shaping up, and more importantly, as the subject suggests, how not to invest. Because most of the time, the questions that people ask is, what's the next best stock, or where should we invest, how should we position ourselves. I think the better question to ask is how not to invest, what not to do. So if you don't make silly, stupid mistakes, you are bound to do well over the cycle. And none of this, as I said, is any sort of advice. I'm incompetent. I have no capability to advise anyone. Whatever I'm saying is from my own perspective, how I tend to think, and what's good for me, that kind of approach. Because I understand myself, I'm self-aware about my weaknesses. So my approach will probably not be suitable for you. So take that as a caveat and apply your own sort of due diligence research before you act on any of this opinion. Thank you. Perfect, sir. And wish you a very happy Teachers' Day and to each and every one of us because we all learn from each other and market is the biggest teacher. We all are a student of market. So, sir, just to start with, the question is on CDMO, the Biosecure Act thing. I mean, it will be tabled in the Parliament next week. So there is a lot of hue and cry about it. Parallelly, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर इस पे व्हाट हैपन टू सीडीएमओ इफ से इन 2028-29 में रिसेशन टाइप कुछ आ गया तो ऐसा एक क्वेश्चन है तो इन दोनों को क्लब करके वी कैन स्टार्ट सर. श्योर. अवधि भी चलेगी ना, ये ऐसा नहीं है ना कि इंग्लिश या हिंदी मिला जुला के बिहारी अवधि भी चाल चालबे ना. See, बिल्कुल सर. it's a valid question, and I will keep mixing Hindi and English to the best of my ability. I'll probably answer this one in both English and Hindi because I think this is a very hot, relevant topic at the moment, and I'm not sure how many people understand what Biosecure Bill is all about. It's not an act yet. So Aditya Khemka sir explained this in a very lucid and easy to understand parlance very recently on one of his, I think, uh, Bajaj साहब के वो face to face session में. So he was in Kolkata recently about a month ago, and he explained that, and I also tweeted um, then. So that's one already very ready explanation. If you fail to find it, it's there on that face to face YouTube. But I'll try and explain what it means. But more than the bill itself, my the way I tend to look at it, what if Biosecure fails to become an act in its current form? Question mark. Or what if it's diluted? What about that scenario? Because everyone is kind of assuming that Biosecure will become an act in its current form and it will not be diluted further. I will look at it from a different perspective. What if Biosecure fails to become an act in its current form? What if it is diluted? What will you do then? What happens then? So if you have the answer to that scenario, then I think you are better prepared as an investor because come what may, you will unlikely lose your capital over a 2 to 3 year horizon or 3 to 4 year horizon, right? Um, so think in terms of the chairperson or the exact board member of an innovator, both small biotech as well as big pharma. As a exact board member or a chairperson, I would still look to diversify my risk. And what is the risk? Risk is if all my molecules are in a single basket, i.e., a single jurisdiction or a single company
within, let's say, Europe or Korea or India or China, doesn't matter. So from that perspective, nothing changes as far as my positioning is concerned. And I could be Novartis, I could be AstraZeneca, I could be a small biotech like Karuna Therapeutics, I could be any random innovator. And I don't want to risk all my assets in a single sort of quote unquote party. So with or without biosecure, the supply chain rebalancing is an ongoing phenomenon. It is started somewhere around COVID 2021 or thereabout. It's a long gestation, long cycle. The early results will be probably visible in, let's say, fiscal 27. But it has already started, and it started with preclinical and phase one. And for those who have read the book and those who understand, they've been following this innovator synthesis workflow. It's a 7 to 15-year cycle, give or take. So, if a asset that was in preclinical and phase one was supposed to go to China, but it came to India, it is still in probably in a phase two. So the traction is still visible to the management and the quote unquote insider, but it's not visible to the outsider, i.e., the shareholders and the analyst community. But the molecule is already in phase two, and otherwise, in a normal scenario, it might have gone to China. But because of COVID and what were discovered, that drugs and innovation can be used as a weapon, that supply chain rebalancing started happening. Now, Biosecure is just adding a turbo booster potentially to that. And if that act were to, or bill were to become an act, it kind of becomes a ticking time bomb. That look, 7 to 8 years out, you have to decouple, which means that even the phase three and late phase three and even the commercial molecules will start flowing into the jurisdictions which are friendly jurisdictions. And India definitely will score there. India alone will not be the beneficiary. There are good companies in Europe, there are good companies in Korea, there are good companies even in Taiwan. But given the size and the scale at which the Chinese companies were operating or are operating, one country or a bunch of companies will not be able to absorb all the additional flux of molecules. So it will be widely distributed, and that's precisely the reason why the Murugappas and the Ramkis, who had never done any work on pharmaceuticals and life sciences, are now very active in the CRAMS custom synthesis. तो लाला जी अपना पैसा डाल रहे हैं. Lala ji sees a tailwind, and that is a very credible indicator because लाला जी दांत से पकड़ के रखते हैं नोट को. अगर लाला जी नोट छोड़ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ डेफिनेट टेलविंड, एंड लाला जी वर्बल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही अपने दांत के जबड़े में से नोट को cycle. There are no shortcuts, and from that perspective, I think, as I said, the results will be out somewhere around FY27 with or without Biosecure. If Biosecure becomes a reality in some shape or form, it will only add, I repeat, it will only add an extra engine or act as a booster. So, from that perspective, it can rewrite the whole scenario. Even without the Biosecure, we have seen the earnings jump. So Newland 16 crore became 300 odd crores without Biosecure. That's kind of de-risking of supply chain, an element of it for sure.
Now, will Biosecure add to that pipeline? Of course it will. But that pipeline will not be visible for next 3 years. That's the nature of the beast, you like it or not. It's not a flick of the switch कि लाइट ऑन करी बत्ती जल गई ऐसे नहीं. So this is not a building material kind of a factory setup that you don't need any approval other than the environment clearance. You get the environment clearance, you set up the factory, you start production, and PNL will start jumping around. It doesn't work that way. In pharma, in manufacturing, pharma manufacturing, life sciences manufacturing, in CDMO, in API, things typically go south before they go north, and that's why we see that hockey stick. You first go down, you take a hit, so you pay a penalty upfront in terms of higher fixed cost. So your margins, if your steady state margins are 25% and you do a heavy capex, your margins will go 10-15%. You will take a hit upfront, and then you will slowly recover from those 10-15% margins to 25% margins, and then you will go to 30-35%. So you will make a new high, but before you make a new high in the margins, you will make a new low, probably. And that's the nature of the beast. And so, long answer, but yes, and with or without biosecure, there is a tailwind. There is a tailwind plus plus kind of a force with the biosecure. Even without biosecure, the tailwind seems sustainable to me. That's how I would look at. So I would rather look at the valuation and not the narrative. So I would apply the common sense. Good management, good sustainable business, decent valuation, and a strong sustainable sector tailwind, which I believe CDMO as a space and novel manufacturing as a space. I mean, you look at the government, what government of India is doing, and there's a Pharma Vision 2047 you could Google, right? Government has got a new bio policy. Government is committed to make India an innovation-led development and manufacturing base. अभी रोक सको तो रोक लो. I hope that answers the question. Right, sir. Yeah, was there any other So part to it? no, no, it was that much only. So coming to the next question, sir, the question is on Heikel. So people are asking, will Heikel beat UPL? And seeing the con calls of Heikel for last couple of quarters, and the management had appeared very conservative. So, basis the recent con call or any new developments which I mean you would like to talk about. Yeah. So I would start with asking a counter question. Will Heikel beat UPL is like asking will Srijesh beat Rishabh Pant? Different. You comparing apple with oranges. It's a it's a very it's a very irrelevant question. I mean, if I say will Srijesh beat Rishabh Pant or will Rishabh Pant beat Srijesh? Srijesh is of course the ex ace goalkeeper from the Indian hockey team, back-to-back bronze, right? He's been a star performer over the years. Very consistent track record. Is of course retired from international hockey, and that's how comparing UPL and ICL, which are very different kind of a business. UPL cannot do the custom synthesis of a pharmaceutical or the custom synthesis of a specialty food ingredient, NCE molecule from phase one to commercial. UPL hasn't got that capability. UPL has got agrochemical capability. Heikel has got agrochemical capability, but at a different scale. Heikel is more like a B2B player. So there is no comparison between UPL and Heikel. So the question that whether A will beat B doesn't actually arise. And you don't make money by betting on those kind of quote unquote narratives. You make money when you invest in a combination of parameters, a good management, a sustainable business at a decent valuation. The reason people made money in Newland Labs because not because simply because Newland delivered on earnings. They made humongous money in Newland Labs because the starting valuation was below one time book value.
I posted that graph yesterday, that gutterland to dreamland journey. That's how you make a seriously large alpha. So the starting perception has to be negative, and when you get earning surprise on top of that negative perception, the Lollapalooza happens. So that's how you would make money. That's all I would like to say. Right. So next question is on views on DMCC's chemical vertical opportunity size. Hmm. Right. So, quick take is science is good there. It's a case of good management and good business stuck in a bad cycle. Of course, I cannot time the recovery. No one can time the recovery. So I would just follow what I mentioned in the last spaces of podcast session, the quote unquote invitation card template. Let the company chapo that invitation for you by showing a significant margin improvement, showing actual traction, what I call the business level breakout. And even if you have to buy this stock at a higher price point, let's say 350, I wouldn't hesitate because I will have the certainty and I will not have to wait. You may buy GMCC at 240 or 250, and then you may wait for 3 years. So the stock may go from 250 to 350. It may come back to 250. So it's kind of in the way I see it. I'm not a technical expert, but maybe many of you are. To my mind, it's kind of in a range, 250 to 350 kind of a range, ballpark, and let it break out of that range and let the earnings, the force of the earnings, take the stock to the next trajectory, and then you can position yourself because you don't end up wasting too much time. But as I said, science is good there. Custom synthesis is definitely an element there. It's good sustainable chemistry. Annual report has got all the details. I would encourage you to read the annual reports, but none of us can give you a precise quarter when the earnings recovery will happen. It's a B2B business. So to that extent, their hands are tied as well. It's a pull business and it's not a push business. They cannot push their product. The customers will ask for it, so the customer will pull the shipment. So that's why I call it a pull model. Um, but otherwise, I've got no serious concern on DMCC, and I remain invested, so I'm biased, of course. Alright. So next question is on Solara. So he's asking about Solara's polymer opportunity, Taiwanese opportunity, and its CMO potential. And if you can give some color on valuation. अच्छा, So मतलब that is सबने all. सबने ट्वीट पढ़ ली, सबने कीवर्ड याद कर लिए, वो पर्ची में बना के रख लिए कीवर्ड. सही है. So guys, see, to understand Solara, you need to read the biography of Mr. Arun Kumar and not the biography of Solara. So, yes, you need to understand what Solara is all about, but before understanding Solara, you have to before getting into the science of Solara, you have to get into the art and the strategy and the management. So, you have to understand the biography of Arun Kumar. So, um, I have followed. So, I started my investing journey back in 90s, and somehow after losing my almost my entire capital in the IPO boom of 1995. That's why I love IPOs, right? Because I lost all the capital there in 1994, 95, the IPO boom. I started somehow following sustainable businesses, and one of my uncle introduced me to the world of pharmaceuticals. So very early on, I started tracking companies like Natco, Lupin, Orchid, and even more pin. And then there was a company called Arcolab, which later on became Strides Arcolab. So they used to do soft gel capsules. And Schroders, uh, they were a UK based private equity fund kind of a venture, Schroders Capital. Schroders, one of or two of their early investments in India, one was Orchid
in 90s, and the other one was or early 2000, and the other one was Arcolab or Strides. And I've been following Arun Kumar ever since. He's a maverick, and he hasn't performed to his potential in the last, I would say, since the Agila transaction. So Strides had a very successful injectables business called Agila, which they sold to Mylan, and shareholders got a windfall dividend of $500. Um, since then, Arun Kumar has been in a kind of a hiatus mode, and he hasn't delivered according to the capability or the potential that this person has. And I think it's kind of a case of a compressed spring. So the mean reversion at the level of Arun Kumar has to happen, and all the negative or underperformance of the last 7, 8, 9, 10 years will gradually mean revert, and the average would be the mean, which means that we expect better times from the group companies of Strides over the next few years. And I think the initial signs are visible in Solara. They took they've had a comedy of errors, the previous management. uh, Over dependency on IBU, they started expanding on a commodity product, and the focus was more on sales. And Arun Kumar has kind of accepted all that as a mistake. If you read through the third quarter third quarter earnings transcript of Solara, fourth quarter earnings transcript, it's all well documented there. So you just sit through, you grab a cup of tea or a coffee and read through those transcripts, and you will get a pretty good understanding of, what has happened in the past and what's likely to happen over the next couple of quarters. I think the stock may be running a bit ahead of itself. Um, I don't know. So if you have got a 3-year horizon, absolutely no doubt in my mind that this is still a value, and it will still be a value even at $1,000. If you have got a 3 to 5 year horizon, to my mind, I could be wrong. To my mind, even at 1,000, Solara has got value. But if you have got a horizon of 3 months, then you got to wait for the dip. And there are different kinds of animals in this zoo called market. कुछ कोई लोग 1 महीने के लिए खेल रहे हैं, कोई लोग 2 हफ्ते के लिए खेल रहे हैं, कोई 3 महीने के लिए खेल रहे हैं, कोई 5 साल के लिए खेल रहा है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की जंतु हो, what kind of animal you are in this zoo, and then position accordingly. अगर मेरा 5 साल का होराइजन होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि सोलारा कल को ₹500 हो रहा है या ₹1,000 हो रहा है, अदर देन द फैक्ट दैट कि मैं 500 पे लूंगा, लेकिन मैं 1,000 पे बेचूंगा नहीं, because that's my understanding of the long term dynamics. So that's what I would, and I would tend to wait for walk the talk here. So Q4, they have guided for no less than 20% EBITDA of the top of my head, and then they expect to maintain that exit run rate. So let's wait for the second half, and more importantly the fourth quarter, and then see where we are. I can see Aditya has joined. Guruji, Uh, happy Teachers Day. okay, बुलाते हैं सर. Meanwhile, the question is on Piramal Pharma. So basically, he is asking about the debt reduction. So he's asking, is the management on the right track to reducing the debt in future, and how we can see Piramal Pharma shaping up from here? हम्म अच्छा क्वेश्चन है. नया हाई बनाया ना स्टॉक ने, 200 क्रॉस किया तो इंटरेस्ट भी ऑल टाइम हाई पे होगा. जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, जाना भी चाहिए. तो देखो, आई हैव आई हैव हैड a multitude of views. I got spooked by the high debt of Piramal Pharma at one point. It's all well documented. Um, so the way I see it.
Piramal Pharma, as we know, just for those who don't know, it's a conglomerate. It's a mix of businesses. There's a branded India consumer, nothing to do with US FDA. It's kind of more like an OTC business, Saridon, and all the rest of it, lactocalamine, and baby products, branded, etc. एक वो OTC वाला बिजनेस है, छोटा बिजनेस है वो थोड़ा, आई थिंक इट्स अबाउट 1000 करोड़ बिजनेस, गिव और टेक. इनका एक और बिजनेस है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स का, जिसमें it's kind of an oligopoly, or in some molecules they've even got a monopoly kind of a scenario and a very high market share. So एक इनका प्रोडक्ट है सेवोफ्लोरेन करके, इसका 40% मार्केट शेयर इन द यूएस, एंड दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स. नवीन फ्लोरीन को लेके बहुत लोग भक्ति में दिखते हैं मुझे 15 टाइम सेल्स पे, कि वो उसके पास वो फ्लोरीन केमिस्ट्री है. Piramal Pharma has actually executed fluorine chemistry. They understand the power of fluorine chemistry. They have actually got products in the GMP space. The end product. Sevoflurane is an example, right? इतना volatile product है वो कि आप उसको खोल के क्रिटिकल केयर में हॉस्पिटल को सूंघाओगे और वो बेहोश हो जाएगा. So complex handling of chemistry with all the GMP compliance, तो ये सब इनको बचपन से आता है, and they have spot immaculate US FDA track record. और तीसरा इनका धंधा जो है वो CDMO का है, हाई कॉस्ट बेस, हाई फिक्स्ड कॉस्ट एक्सेट्रा. तो coming to the debt, because the question was on the debt, so that's the with that background about the business. इफ यू रीड द ट्रांसक्रिप्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट आप लोग पढ़ा करो. तो आई थिंक इन थर्ड क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने ये बोला हुआ है कि मेंटेनेंस कैपेक्स इज इन इंडियन करेंसी टर्म्स इज लेस देन 300 करोड़. बट अगर आप पीरामल फार्मा का डिप्रिसिएशन देखोगे तो वो 300 से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है. सो दैट काइंड ऑफ टेल्स यू दैट देयर प्लांट्स आर रिलेटिवली न्यू और refurbished, and depreciation is not giving a true indication of their maintenance capex. So maintenance capex 300 करोड़ से कम का है, 1000 करोड़ से ऊपर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है स्टेडी स्टेट में. तो 1000 - 300, 700, I think that gives them the ability to service the debt. It kind of restricts them to invest aggressively in the business, but to my mind, there is plenty of spare capacity in their CDMO operations today. So probably they don't need to expand capacity. Generally speaking, on a product by product basis, on a development versus commercial product specific capacity, there may still be some need to expand capacity on certain facilities for certain lines for certain products. That is an ongoing thing. But to my mind, I think yes, that is a concern. Ideally, I would like to see a net debt to EBITDA of less than 2. Today, off the top of my head, I think they are near 2.8. And that net debt to EBITDA, as the equation suggests, has got a numerator and a denominator. And you can get a lower net debt to EBITDA by reducing the debt, or by increasing the EBITDA, or doing a bit of both. So I think over the next year or two, this equation should look better. It has improved in the last 12 months, and I expect it to improve further in the next 12 months. But again, this whole space has got a lot of volatility and lumpiness, and no two quarters will be similar. Piramal's H2 typically is better than H1. You cannot, and you can never value these businesses on price earnings multiple. Please, for God's sake, stop looking at that price earnings multiple, because आपने 100 रुपए पे भी पिरामल फार्मा नहीं लिया होगा. कि अगर आप पीई देख रहे होगे तो आज तो आप क्या ही लोगे. तो पीई तो नहीं देखनी है. आई रिमेम्बर हम लोगों ने ये कई बार स्पेसेस में कवर किया है. आदित्य सर की कल एक ट्वीट भी आई है जिसमें उन्होंने पीई को मतलब बहुत बुरी तरीके से जलील किया है. तो वो मस्ट है. आपको प्राइस टू सेल्स देखना है, प्राइस टू बुक देखना है, ईवी टू इबिटा देखना है,
आपको ईवी टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी आप लास्ट 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो। ये 4-5 मेट्रिक, अगर सारे मेट्रिक पे कोई बिजनेस सस्ता है, 2 साल पहले न्यूलैंड हर पैरामीटर पे सस्ता था, इसलिए वो सस्ता था। न्यूलैंड सिर्फ प्राइस टू बुक पे सस्ता नहीं था, न्यूलैंड सिर्फ प्राइस टू सेल्स पे सस्ता नहीं था, न्यूलैंड सिर्फ ईवी EBITDA पे सस्ता नहीं था, न्यूलैंड सिर्फ ईवी टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे सस्ता नहीं था, न्यूलैंड इन सारों पे सस्ता था। So when something is cheap on all the parameters, then it is cheap. I hope I've covered extensively, but because गुरुजी आ गए हैं तो बिना इनसे पिरामल फार्मा का या इन जनरल CDMO स्पेस का व्यू लिए और बायोसिक्योर का व्यू लिए तो इनको जाने नहीं देंगे। प्रणाम गुरुजी, सजल भाई प्रणाम। प्रणाम प्रिंस, एंड टू ऑल दी ऑडियंस प्रणाम, बिकॉज आप सब भी गुरु हैं। आप लोगों से भी बहुत सीखता हूँ। आई कांट टेल यू कितने लोग डीएम करते हैं जब मैं कुछ पूछता हूँ और उनसे इतना डेटा मिलता है। इट इज सो सेटिस्फाइंग टू बी कनेक्टेड टू आवर फैमिली, सॉर्ट ऑफ माई ट्विटर फैमिली, एंड इट्स अनबिलीवेबली satisfying and great. I'm eternally grateful to all of you. पिरामल फार्मा पे पर से कोई व्यू नहीं है, सच बोल रहा हूँ, बिकॉज उस पर काम बहुत कम किया है मैंने, एंड हाफ बेक्ड केक खिलाना नहीं चाहूंगा किसी को भी। बट सीडीएमओ स्पेस पे, बायोसिक्योर एक्ट पे ऑब्वियसली पहले भी बोला है मैंने। मैं एक एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट मैं एक बताता हूँ। आई थिंक ये इंस्टेंस मैंने पहले शेयर नहीं किया था, बट अब आई थिंक आई कैन शेयर दिस इंस्टेंस। मैं आई थिंक 3 महीने पहले आई मेट अ एपीआई कंपनी प्रमोटर इन हैदराबाद. It's a small API company, private company, not listed. Top line is 150 crores for FY24, and 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जब मैं उसे 3 महीने पहले मिला था, हिज कैपेसिटी वाज 100% यूटिलाइज। सीडीएमओ प्लेयर है, ही आल्सो डज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटर प्रोडक्ट्स, बट अभी 2-4 इनोवेटर छोटे छोटे बायोटेक कंपनीज के लिए केजीज में बनाता है, जो लैब लेवल रिक्वायरमेंट होती है, दैट मैन्युफैक्चरिंग दे डू। तो जब मैं उनसे मिलने गया उस दिन वो बहुत परेशान था। एक्चुअली वॉक्ड इनटू द मीटिंग हाफ एन आवर लेट, एंड इट्स वेरी अनलाइक हिम, बिकॉज व्हेनेवर इन द पास्ट आई हैव मेट हिम, ही इज, मतलब वो हमेशा रेडी रहते हैं, मेरे आने का वेट करते हैं, यू नो, ही ग्रीट्स मी एट द डोर एंड एवरीथिंग। इस टाइम वो मीटिंग पे आधे घंटा लेट आए, और आए तो एकदम ऐसे परेशान से लग रहे थे। हाय हेलो भी किया, अरे बैठ 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 बोला। तो मैंने पूछा क्या हुआ सर, थोड़े हैजल डो परेशान हो, क्या बात है? तो बोले कि यार आज बहुत गजब का दिन है। मैंने बोला सर क्या हो गया, समझाओ। बोला यार, एक हफ्ता पहले पहली बार आउट ऑफ नोवेयर एस्ट्राजेनेका से एक आरएफक्यू आया। आरएफक्यू इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो मैंने बोला अच्छा एस्ट्राजेनेका, नाउ यू कैन इमेजिन 150 करोड़ टॉप लाइन की कंपनी इन इंडिया इन हेल्थ केयर और इन एपीआई इज अ $20 million टॉप लाइन कंपनी. Them receiving a RFQ from AstraZeneca, which is, if I'm not mistaken, around $20 billion in top line. तो 20 मिलियन की कंपनी और 20 बिलियन की कंपनी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बिजनेस का आरएफक्यू आया। तो बोला यार मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था एक हफ्ता पहले जब वो आरएफक्यू आया था, कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, ऑल ऑफ माय कैपेसिटी इज टाइड अप विद माय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। नाउ एस्ट्राजेनेका से क्वेरी आया, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद द जायंट. So he was in capacity expansion mode, but he couldn't expand capacity as fast to cater to the order that or the request that AstraZeneca had sent him. तो उसने बोला व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने परचेज मैनेजर को पूछा कि पता करो एस्ट्राजेनेका कहाँ से खरीदता है और कितने में खरीदता है। 2-3 दिन बाद परचेज मैनेजर वापस आया, बोला यार एस्ट्राजेनेका ये मटेरियल जो है ये चाइना से लेता है और कुछ $400 $400 पर केजी में खरीद रहा है। तो इसने क्या किया, इसने अपने परचेज मैनेजर को बोला कि आप एक काम करो, आप उसको $550 का या $525 का कोटेशन भेज दो, अपने आप ही ऑर्डर नहीं आएगा। तो परचेज मैनेजर ने एक दिन बाद कोटेशन भेज दिया और अगले दिन ऑर्डर आ गया। तो जिस दिन मैं वहां पहुंचा था उस दिन उसको उस $525 पर केजी पे ऑर्डर आया था। एंड नाउ ही वाज बेसिकली वरीड कि वो ऑर्डर अब मैं सप्लाई कैसे करूं, एंड द रीजन व्हाई ही सेंट अ हायर कोटेशन वाज ही वांटेड टू मेंटेन द रिलेशनशिप, एट लीस्ट ही डिडंट वांट टू से नो टू एन एस्ट्राजेनेका। एंड तो बोला, तो उस दिन वो परेशान इसलिए थे कि यार अब कैपेसिटी तो 100% यूटिलाइज है और एस्ट्राजेनेका ने ऑर्डर भी कर दिया, हाउ डू आई सर्विस। बट इस कॉन्वर्सेशन से मैं क्या सीखा, और इफ यू नोटिस इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं ज्यादा सीडीएमओ और बोलने लगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज नाउ इट्स प्रोबेबली नो लॉन्गर द इंडियन कंपनी सीकिंग बिजनेस, it is the multinational guys seeking out Indian companies to give them business in this area. Obviously, they have their filters. Obviously, they have their screeners. Obviously, they'll have their criterion to be met. Uh,
लेकिन एंड ऑफ द डे अगर एक 150 करोड़ की टॉप लाइन की कंपनी एस्ट्राजेनेका को आरएफक्यू भेजती है और वो आरएफक्यू पे ऑर्डर आ जाता है विच इज हायर 30% हायर 40% हायर टू व्हाट दे वर बाइंग इन चाइना, बॉस कुछ तो हो रहा है. समथिंग इज ट्रिगरिंग दीज सीईओज और दीज एमएनसीज टू क्विकली डिवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना. तो सीडीएमओ पे मैं बहुत बुलिश हूँ, एज आई हैव ऑलवेज बिन इन द पास्ट 2 years. एंड ये बात पक्की है कि जो सजल भाई ने बोला है, रिपीट दैट, लंपी होता है ये बिजनेस, बाय इट्स वेरी नेचर लंपी है, था. और जब तक आप मल्टी डिवर्सिफाइड नहीं हो जाए इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस एंड प्रोडक्ट्स, तब तक वो लंपी रहेगा. इट कैन बी लंपी विद इन क्वार्टर्स, इट कैन बी लंपी विद इन ईयर्स. तो हमने हाइकल देखा है विच इज लंपी विद इन ईयर्स, हमने न्यूलैंड देखा है लंपी विद इन क्वार्टर्स एंड समटाइम्स विद इन ईयर्स. तो होता है. सो if you are investing in this business, you cannot have a 1 or 2 year horizon. It is just useless to do that. So that's what I wanted to share on this. हाँ एग्जैक्टली और लंपी पे ना, अगर 2-3 साल लंपीनेस अपने प्रेजेंट रूप में नेगेटिव हो चुकी है, वहां लपक लो, क्योंकि Exactly. उसके बाद और नेगेटिव होगा नहीं. और इसका फ्लिप साइड भी है. देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर लंपीनेस अपने प्रचंड रूप में हाई टाइड में है कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 साल, और स्टॉक रीरेट हो गया है, सुवेन कोहेंस आजकल उसका जगराता चल रहा है अलग से. मोर लाइक अ मार्केटिंग कंपनी एंड लेस देन अ सीडीएमओ, इफ आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट. मेरे को तो एक एक पैरामीटर पे पता है ना. 18 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे वो कोट हो रहा है मर्ज बिजनेस, कोहेंस प्लस सुवेन कंबाइंड. मैं इंटरेक्ट करता हूँ इनोवेटर्स से जो सुवेन का प्लांट विजिट करके आए हैं, तो मेरे को पता है फीडबैक, और मेरे को पता है वर्थ क्या है बिजनेस की. और मार्केट के जो एनालिस्ट है ना, जो पंडित लोग हैं, वो 18 टाइम्स प्राइस पे इसको बिट कर रहे हैं. एंड आई फील सॉरी, बट इनकी तो यही इनको इनको यही करना आता है. ये तो 2021 के आईपीओ गोल्ड रश में भी यही काम कर रहे थे. किसी बिजनेस को 20 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे खरीद रहे थे, किसी को 40 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे खरीद रहे थे. रिसर्च रिपोर्टें छप रही थी, फ्री में मिल रही थी सोशल मीडिया पे. आपके घर में भी आई होगी, आपने पढ़ी भी होगी, हो सकता है आपने इन्वेस्ट भी किया हो, फिर उसके बाद आपने लॉस भी बुक कर लिया हो, फिर किसी को जाकर ट्रोल कर दिया होगा कि तेरे कहने से, क्योंकि मैं तो गधा हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरा अपना दिमाग नहीं है, मैंने तेरे कहने से इन्वेस्ट किया अपना पैसा, और मेरा पैसा जो है वो डूब गया है, अब मैं तुझे ट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तो कहीं गलती थी ही नहीं. इस तरह के जंतु बहुत हैं ट्विटर पे, वो सोशल मीडिया पे इन जनरल. तो आई फील सॉरी फॉर देम. तो कहने का मतलब ये है कि अगर डाउन साइकिल में बिजनेस है पिछले 2-3 साल से, तो उसका वन वे ही मूव होगा, वो अप होगा. और अगर अप साइकिल में है और बहुत सारा उसका ढोल पीटा जा रहा है और वैल्यूएशन भी हाई है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतो. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. राइट सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल ऑफ क्वेश्चंस इसी नाम पे है, मोरपन लैब्स. तो इसमें कुछ डेवलपमेंट है, और इस पे क्वेश्चन एडिशनल ये भी है, रीसेंट QIP stock has run up more than 50%. Can it be a dark horse? Any significant turnaround in making? देखा, इसमें दो तीन बातें बताता हूँ मैं. सूरी साहब सूरी साहब इज नॉट अ क्रुक. देखो, एंटरप्रेन्योर से जेन्युइन गलती होती है, जेन्युइन मिस्टेक्स हैपन इन बिजनेस. लेकिन नीयत खराब, मेरी समझ से जहां तक मैंने उनको देखा है, मैं 20-25 साल, तो मैं वो आदमी हूँ जिसने 90% का लॉस बुक किया है मोरपिन में. 2001 में मैंने मोरपिन लिया था, और 2002 तक उसमें 90-95% कैपिटल इरोजन हो चुका था. तो मेरे से बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं है ऑन परसेंटेज टर्म्स. मैं आज आपके सामने इसलिए बैठ के पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल ही उसमें लिमिटेड लगा हुआ था. ठीक है, तो वो लिमिटेड कैपिटल पे 90-95% का कैपिटल लॉस झेलने के बाद भी, बिकॉज आई हैड अदर सोर्सेज ऑफ कैश फ्लोज एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, आई सर्वाइव्ड. सो डाइवर्सिफिकेशन एंड हैविंग अ सेकंड अर्निंग सोर्स, वो मेरे को यहाँ तक ले आया. बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स से गलतियां होती हैं बिजनेस में, रैंडम इवेंट्स होते हैं.
एक्सटर्नल इवेंट्स कुछ होते हैं, आप नहीं रिएक्ट कर पाते हो। तो ये जो दो धंधे हैं ना, कोपरन और मोरपिन, ये मुझे इस मामले में काफी सिमिलर लगते हैं कि इनसे चोर नहीं थे, फ्रॉड नहीं है ये। ये तो मेरा ये कन्विक्शन है, एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। मेरे समझ से जेन्युइन बिजनेस मिस्टेक्स हुई, और इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। सूरी साहब का आप यूट्यूब पे जाके बथेरे इंटरव्यू है। एक अमरीश बलीगा साहब के साथ है 3-4 साल पहले। एक ईटी नाउ में भी इनका 30-40 मिनट का 6-8 महीने पहले का इंटरव्यू है, बिफोर क्यूआईपी। अभी तो क्यूआईपी से पहले का वो इंटरव्यू है। तो उसमें मतलब ह्यूमिलिटी देखो, वो भी सीखे हैं लेसन। बताते हैं कि मोरपिन का और रिलायंस का आईपीओ एक ही दिन आया था या एक ही समय आया था, और रिलायंस का एट पार था, कोई प्रीमियम नहीं था, एंड मोरपिन वाज चार्जिंग अ प्रीमियम। तो एक तरीके से कि उनकी लर्निंग, ये बोले हम लोग कंपनी में बात करते थे कि अरे हम लोग कितने अच्छे हैं, देखो हम तो प्रीमियम पे आ रहे हैं और रिलायंस जो है वो फेस वैल्यू पे आ रहा है। आज रिलायंस कहाँ है, मोरपिन कहाँ है। तो समय सब कुछ आपको सिखाता है। आप कभी भी सूरी साहब का इंटरव्यू देखोगे, आपको उनके अंदर एक ह्यूमिलिटी की झलक दिखेगी। तो समय के साथ साथ इंसान बदलता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी चेंज हुए हैं। कई सारे लेसन्स, डिफिकल्ट लेसन्स उन्होंने सीखे हैं। बैलेंस शीट की ऐसी तैसी नहीं करी, और मेरी समझ से उनको क्यूआईपी भी करने की जरूरत नहीं थी। इफ मैं बताता हूँ मैंने कैसे रीड किया इस पूरे इक्वेशन को। इनके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 70-80-90 करोड़ के आसपास का, और इनके पास कुछ बैलेंस शीट में कैश भी था। तो कैश प्लस ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंबाइंड प्लस थोड़ा डेट भी ये ले सकते थे। इनको जो 200 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो तो ये अपने इंटरनल एक्रूवल्स और डेट से पूरा कर सकते थे बड़े प्यार से। इनको क्यूआईपी की जरूरत नहीं थी। इन्होंने क्यूआईपी क्यों करी? इन्होंने क्यूआईपी इसलिए करी, दे वांटेड इंस्टीट्यूशंस टू पार्टिसिपेट। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के आने से एक स्टेबिलिटी आती है शेयर होल्डिंग में। सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी मेरी सूरी साहब से बात नहीं हुई है। आई गॉट नो 101, राइट। जो भी मैंने फॉलो किया है वो ट्रांसक्रिप्ट्स और एनुअल रिपोर्ट से ही किया है, और उनके इंटरव्यूज से किया है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही कि क्यूआईपी करा ही उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो इंस्टीट्यूशंस को बुलाना चाहते थे, कि भाई हमारी ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट करो। और उनको इनफैक्ट ज्यादा पैसे का ऑप्शन भी था, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें 200 करोड़ ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक नियत का भी पता चलता है। ठीक है। सो ये तो हो गई प्रमोटर की बात, कि भाई नियत में मेरे को, एंड अगेन मैं भगवान नहीं हूँ। सुप्रिया के लिए भी मैंने एक आप लोगों को 1 साल पहले अप्रैल में मई में जो स्पेसिस करी थी, उसमें भी यही बोला था कि समय के मारे, नियत के मारे नहीं है। मुझे कोपरन और मोरपिन में भी कहीं ना कहीं वही स्टोरी लगती है कि समय के मारे हैं ये लोग, नियत के मारे नहीं। बाकी तो समय ही बताएगा, यहाँ से 5 साल बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो मेरा इक्वेशन है मैनेजमेंट को और प्रमोटर को लेके। नाउ कमिंग टू द बिजनेस, मोरपिन का एपीआई बिजनेस इज अ प्रीटी एवरेज बिजनेस। कोपरन का एपीआई बिजनेस इज अ सॉलिड बिजनेस। जो जो पेटेंट्स की मोट कोपरन के पास है, वो मोरपिन के पास नहीं है। हालांकि जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास, मोंटेल्यूकास्ट एंड सो ऑन, उसमें ओलिगोपोली वाला सिनेरियो है, लिमिटेड कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे कोई जाना नहीं चाहता है। दे आर ओल्ड जनरेशन एपीआईज। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर आदित्य सर। तो उनका एपीआई बिजनेस को मैं लो मार्जिन का बिजनेस समझता हूँ। फॉर्मुलेशन विल गिव देम सॉर्ट ऑफ एन एडेड एडवांटेज ऑन दी मार्जिन फ्रंट। उसके बाद उनका वो ये ओटीसी टाइप का बिजनेस है, उसमें डॉक्टर मोरपिन के कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ बर्नॉल टाइप के हैं, नथिंग नथिंग ग्रेट, कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, बट वो ओटीसी है, कैश जनरेटिव बिजनेस है। जो इनका अट्रैक्टिव बिजनेस है वो इनका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, जिसको डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं, वो हायर ग्रोथ बिजनेस भी है। और वहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला एंगल भी है। नॉट जस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, व्हाई नॉट मेक इंडिया एज द हब। आप एशियन रीजन में, इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे आप यूरोप में भी करोगे। तो वो मुझे स्टोरी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है।
मोरपिन में स्टॉक काफी स्ट्रेच्ड है, चला हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो कल कूद पड़ने की गलती मत कर देना। आई रिपीट, अगर आपके पास नहीं है तो कल इसमें मर मिटने की गलती मत कर देना। वेट फॉर डिप्स, वेट फॉर इट टू कूल डाउन। कोई रैंडम इवेंट हो, किसी को छींक आ जाए, मार्केट में बुखार आ जाए, करेक्शन हो जाए, वहां पे देखना कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ बेस बनता हुआ दिख रहा है। वो कोई भी लेवल हो सकता है। वो मुझे नहीं पता 70 रुपए का लेवल होगा, 80 रुपए का लेवल होगा, मुझे नहीं पता, शायद 90 रुपीज का स्टॉक है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। तो जहां पे भी वो बेस आपको बनता दिखाई दे, वहां पे आप, और स्टैगर्ड मैनर में, ये नहीं कि पूरा 100 रुपए लगाने हैं मोरपिन में तो 100 रुपए एक संग आपने डाल दिए और आपको लग रहा है कि अगला न्यूलैंड लैस यहीं से मिलेगा। ऐसा होने वाला है नहीं, किसी भ्रम में मत रहना। तो स्टैगर्ड मैनर में धीरे 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 इन्वेस्ट करना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी। अगेन, यूज योर टेक्निकल कॉम्पिटेंस। आप बाकी लोगों से भी कंसल्ट करो और खुद जाके थोड़ी मेहनत करो। आलस को त्यागो, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, मैनेजमेंट के पुराने इंटरव्यू देखो, और कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मानो कि मैं ये काम अपने अपने कहने से कर रहा हूँ, किसी के कह देने से मैं ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप स्लेव नहीं हो किसी के। सो बी अ बिट मोर अकाउंटेबल टू योर एक्शंस, बी मोर डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, और उसके हिसाब से आप आगे की कार्रवाई इसमें करना। एंड समटाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन, कि भाई मेरे को मोरपिन नहीं लेना, मैं इसको स्टडी करूंगा बट मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा फॉर माई ओन लर्निंग। यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऑन दैट पॉइंट ना, मेरे जो इन्वेस्टिंग के गुरु है, मैं नाम नहीं लेता बिकॉज इट डजंट लाइक टू बी पब्लिकली एक्नॉलेज्ड, वो बोलते हैं नॉट टेकिंग एक्शन इज परहैप्स द बेस्ट एक्शन इन मार्केट्स ऑफन। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वैसे ही बनते हो ना, बाय नॉट टेकिंग मच एक्शन। सो एग्जैक्टली, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। एग्जैक्टली। 500 रुपए पे मैं आरपीजी बेच सकता था, फिर 1000 पे भी मार्केट ने रेट दिया कि अभी बेच दो, बेचोगे क्या? फिर 1200 पे भी बोला बेचोगे क्या? फिर 1500 पे बोला बेचोगे क्या? फिर 2000 पे बोला बेचोगे क्या? कल को 3000 पे बोलेगा बेचोगे क्या? Exactly. Sometimes not taking action is the best course of action. Totally true. सो आदित्य सर का मोरपन लैब्स पे क्या व्यू है? उससे पहले सजल सर, क्विकली, जो वॉकहार्ड है, क्या उसको भी आप इसी कैटेगरी में रखोगे कि किस्मत के मारे हैं, नियत के नहीं, और देयर इज अ नहीं, सेग्रीगेशन बिजनेस ऑन मॉडल ऑन भी। दैट? हाँ, नियत के तो मारे खुद। मैं तो हवील खुराकी वाला साहब का बहुत पुराना फैन हूँ, क्योंकि 90s में वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स थे। उनको तो उनको एक तरीके से एक जुनून आ गया, वो एनसी, एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, एनसीज में। और बैलेंस शीट को सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, उनके संग वो हो गया। वोकहार्ट का बड़ा डाइवर्सिफाइड बढ़िया बिजनेस है, एक से एक ब्रांड्स थे इनके पास, फेरेक्स करके। तो एक लेवल पे ये नेस्ले से compete कर रहे थे, फिर एक लेवल पे इनके पास ब्रांडेड जेनेरिक्स थे। बायोटेक्नोलॉजी में देवर वन ऑफ द पायनियर्स। बट इनकी लग गई बैलेंस शीट और एफएनओ के चक्कर में। अभी बहुत सारे लोग ये एफएनओ में बर्बाद हुए ना, रिटेल में। ये कॉर्पोरेट लेवल की केस स्टडी है, जो एफएनओ के चक्कर में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो नहीं कहूंगा, डेरिवेटिव्स मार्केट में ये इन्होंने ऐसी ऐसी पोजीशंस ले ली इनके मैनेजमेंट ने, कि वहां पे जब टाइट टर्न हुई तो इनके बैलेंस शीट में गेपिंग होल था। तो वो वहां सेम से चीज ये कभी, रैनबैक्सी में भी हुआ था। रैनबैक्सी के हाँ, प्रोमोटर्स ने सेम काम किया था। करेक्ट। तो ये वहां से रिकवर ही नहीं कर पाए। प्लस इनका वो बिजनेस मॉडल है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड दैट वन बास्केट इज दैट क्यूआईडीपी और नॉवल मॉलिक्यूल्स। तो वो तो लॉटरी है ना, जीरो और वन। ऊपर से इनके कंप्लायंस के इश्यूज दुनिया भर के आ गए। तो अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस कहूंगा मैं, कि आपके पास यूएसएफडीए के एक के बाद एक सारे प्लांट आपके धाराशायी हो गए। वलूज से लेकर, चिकलथाना से लेकर, शेंद्रा से लेकर, इवन मॉर्टिन ग्रूव, यूएस की फैसिलिटी। तो यार, एक प्लांट में कॉकरोच मिला मैं समझ सकता था, दो प्लांट में मिल गए, तीसरे में भी मिल गया, चौथे में भी मिल गया। तो अगर इनका कोई मॉलिक्यूल अप्रूव भी हो गया तो उसको इनको कहीं से बनवाना पड़ेगा। चिकलथाना से तो बनवा के यूएस में बेच नहीं पाएंगे ना। तो उसमें कट लगेगा, फ्री में तो कोई बना नहीं देगा। प्लस फिर यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको टीम चाहिए,
किसी को आप हायर करोगे, आप किसी को पार्टनर लोगे, वो आपसे कट लेगा। तो यूएस में आपकी प्राइसिंग अच्छी होगी, लेकिन आपके पास मिलेगा चवन्नी 20 पैसा रुपए में से। और इमर्जिंग मार्केट में आपको वो प्राइसिंग नहीं मिलेगी। वही सेमाग्लूटाइड नाटको वाला गेम है कि आप वेट लॉस ड्रग बनाओगे, प्रचार पूरा करोगे कि हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे लॉन्च कर रहे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस यू गेट टू द यूएस मार्केट विच इज पोस्ट 2030, वो मटेरियल अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी नहीं। प्लस वोकहार्ट के केस में तो वो कोई सस्टेनेबल बिजनेस तो है नहीं कि एक बार मॉलिक्यूल लॉन्च हो गया और फेज 3 में 10 मॉलिक्यूल हैं, और मॉलिक्यूल फेल भी हो जाए तो भी शिपमेंट जा रहा है, इनोवेटर पे करेगा। वो सीडीएमओ वाला मॉडल तो है नहीं। ये तो अपना ही तेल जला रहे हैं। सीडीएमओ क्या करता है, सिंजीन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी बाइक में तेल भरो, मैं चलूंगा, फिर तेल खत्म हो जाएगा, फिर से तू तेल भर देना। बाइक भी तेरी, तेल भी तेरा, और मैं चलाने के सर्विस चार्जेस दूंगा। इनका मॉडल डिफरेंट है, इन्हीं की बाइक है, इन्हीं का तेल है, जब जल गया तो इन्हीं को अपने पैसे से, इसीलिए बार बार ये डाइल्यूट करते हैं। कभी क्यूआईपी करते हैं, कभी किसी और तरीके से डाइल्यूट करके, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो है नहीं उस लेवल का जिस लेवल का इनको चाहिए टू फंड दोज, क्योंकि ये तो कैश गजलिंग बिजनेस होता है। ये वैक्यूम की तरह सक करता है कैश, क्लिनिकल ट्रायल्स का एट एन एडवांस स्टेज। तो अब यहाँ से आपको ये देखना है कि अगर जीत गए तो 1500 का स्टॉक हो जाएगा, चलो 2000 का हो जाएगा, 2000 ही तो था 10 साल पहले भी, वहां हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जीते तो क्या होगा? एंड आई लीव इट एट दैट पॉइंट। राइट सर। आदित्य सर। यार मोरपेन पे ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज सूरी सर केम एंड मेट मी पर्सनली, सो आई वुडंट लाइक टू डाइवल्ज। वोकहार्ट पे बिकॉज आई डिडंट मीट खुराकी वाला सर, आई कैन गिव यू सम ऑफ माय एनालिसिस. So Wokat में as Sajal bhai said, that जुनून और that passion for antimicrobial anti NC वो खा गया उनको यार, मतलब सब कुछ दांव पे लगा दिया उन्होंने. And payoff is going to be excellent if the molecule hits as Sajal bhai said 1500 2000. I think 4000 5000 is a real possibility. 1500 2000 तो मतलब अंडरस्टेटमेंट है. अगर वो कमर्शियल सक्सेस हो गया अमेरिकन मार्केट में तो 4-5 हजार एटलीस्ट आई एम लुकिंग एट दैट. अगेन नो रेकोस गाइस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट द अपसाइड इज ह्यूज. But the probability of that upside is really low. And I'll tell you why. The innovator business model globally is कि आप वोकहार्ट जैसी बायोकॉन जैसी कंपनीज को ढूंढते हो जो छोटी छोटी एनसीज पे काम करते हैं. एंड अगर आपको मॉलिक्यूल में कुछ भी प्रॉमिस लगता है तो या तो आप इन लाइसेंस कर लेते हो या फिर आप कंपनी खरीद जाते हो. आप कंपनी को छोड़ते नहीं हो. एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज सच अ ह्यूज इशू ग्लोबली. कम से कम 10-12 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट हो सकता है ये प्रोडक्ट. इट्स सच अ ह्यूज इशू. तो आई रिफ्यूज टू बिलीव, क्योंकि मैंने इनोवेटर्स को ट्रैक किया है लीमन में, नोमुरा में. आई रिफ्यूज टू बिलीव nobody evaluated this. And if that is not the case, then people evaluated it. They found that there is limited or no merit in the molecule. And hence, Wockhardt continues to develop it and did not or could not out license it or sell it to an innovator. So, hence, I am not a believer in this antimicrobial story. But this is just my analysis, my opinion. If it turns out कि भाई उन्होंने अप्रोच किया और खुराकी वाला ने मना कर दिया because he wanted to do it, if that turns out to be the right story, then boss, and if the molecule becomes a commercial success, over a period of time, then you are looking at a multi bagger in Wockhardt. But please, my recommendation नहीं दे रहा. I'm just telling you that the equation is really skewed. It's like a 0-1 game from here. और इसमें जस्ट टू ऐड अ पॉइंट ना, अभी रोश का एक मैंने स्मार्ट सिंग सर्विसेज के साथ 2-3 महीना पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने रोश का एक केस स्टडी प्रस्तुत किया था। उसमें रोश वाज वेरी पॉजिटिव फॉर द आउटकम ऑफ देयर क्लिनिकल ट्रायल्स इन द लेट साइकिल। सो मॉलिक्यूल लेट फेज 3 में था, और रीड आउट भी बड़े पॉजिटिव आ रहे थे। देयर वाज लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, इवन मैनेजमेंट ऑफ रोश वाज वेरी पॉजिटिव, और काफी उसको वो लोग उस पे गंगो टाइप के थे। एंड देन द रीड आउट केम, एंड रोश टुक अ कंप्लीट यू टर्न। उन्होंने मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करी विद ऑल ह्यूमिलिटी, एंड उन्होंने कुछ उसको लीपा पोती नहीं करी। दे सेड कि भाई रीड आउट पॉजिटिव नहीं है, और इस मॉलिक्यूल का यहाँ पे कहानी होता है खत्म। सो फ्रॉम हीरो टू जीरो वो मॉलिक्यूल ओवर ऑलमोस्ट ओवरनाइट हो गया। ये तो एक कहानी है। एंड दूसरी, अगर आपको
क्लिनिकल ट्रायल्स की डिजाइन को समझना है ना, कि कैसे डिजाइन की जाती है और कैसे उसको स्पिन दिया जाता है एनालिस्ट कम्युनिटी में बेचने के लिए। तो आप इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक किताब है बैड फार्मा करके, हाउ मेडिसिन इज ब्रोकन एंड हाउ कैन बी फिक्स इट करके। उसमें उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स की केस स्टडीज ली हैं। आप कभी उसको पढ़ना, और उसके बाद सोचना कि अगर मैं 1 फीट का हर्डल बनाऊंगा तो मैं उसको आराम से जंप कर लूंगा, और मैं बोलूंगा मैं देखो मैंने क्लिनिकल ट्रायल का आउटकम बड़ा अच्छा किया। और अगर मैं 3 फीट का 4 फीट का हर्डल बनाऊंगा तो मैं उसको जंप नहीं कर पाऊंगा। तो क्लिनिकल ट्रायल की डिजाइन भी कैसे करनी होती है और उसको कैसे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, कि आप उसमें किस तरह का ट्विस्ट दे रहे हो, किस तरह का स्पिन दे रहे हो रीड आउट में। इनोवेटर ये सब हथकंडे अपनाता है, लेकिन रेगुलेटर बहुत स्मार्ट होता है। वो ये देखता है कि आपकी ड्रग किस लेवल पे साइड इफेक्ट्स दे रही है, इसमें क्या अपसाइड होगी, क्या डाउनसाइड होगी, और उस हिसाब से वो अप्रूवल मिलता है। इंडिया में कोई भी ड्रग अप्रूव हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट में कोई भी ड्रग अप्रूव हो सकती है, लेकिन उसमें आपको एक लिमिटेड वॉल्यूम, लिमिटेड स्केल, लिमिटेड ट्रैक्शन दिखेगा पीएनएल पे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। लेकिन यूएस एफडीए के थ्रू और ईमा के थ्रू उस ड्रग को अप्रूव कराना, ईमा में अगर आप अप्रूव हो गए, आपने यूरोप में लॉन्च भी किया, तो प्राइसिंग आपको उतनी सॉलिड नहीं मिलेगी जितनी यूएस में मिलेगी। देयर इज अ delta or differential between the pricing you get in the European market, Germany, France, UK versus the pricing that you will get in the US. तो इसमें कहते हैं ना कहावत की, many a slip between the cup and the lip। तो इसमें वो बुक, अगर कोई फार्मा एंथुजियास्ट है ना, तो बैड फार्मा हाउ मेडिसिन इज ब्रोकन, वो आप बुक जरूर पढ़ना। बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा आपको उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके। एक्चुअली ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ भी एसएमएस फार्मा का, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक एसएमएस ही था ना, नहीं सुवेन था, सुवेन। सुवेन। सुवेन सुवेन ने वो सीएनएस ड्रग जो था उनका एएलएस को लेके, द पार्किंसन स्लैश वो वाला ड्रग, उसको लेके कितना उन्होंने बोला था इन्वेस्टर्स को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टॉक हैड रैलीड सो सिग्निफिकेंटली एट दैट टाइम कि ये ड्रग आ जाएगा मल्टी ब्लॉकबस्टर, ये वो। उस टाइम भी मैंने सेम बात बोली थी बॉस, एएलएस इज अ इंडिकेशन जहां multiple major pharmaceutical companies like Pfizer, Novartis, AstraZeneca, they had all been hunting and they had all been developing molecules and they have been failing. Parkinson's, हाँ, ALS and Parkinson था। तो मैंने बोला था एएलएस और पार्किंसन में अगर आपको ड्रग बना रहे हो तो कोई चांस ही नहीं है फाइजर और एस्ट्राजेनेका और लिली डजंट कम एंड पिक यू, राइट? एंड दे विल नॉट जस्ट बाय द ड्रग, इफ यू रिफ्यूज टू सेल द ड्रग दे विल ब्लडी बाय यू। वो बोलेंगे पूरा बिजनेस दे दे, हम ड्रग रख लेंगे, बाकी हम निचोड़ लेंगे, जैसे भी बिजनेस को निचोड़ना है। तो आई प्रीटी मच एंड मतलब आई टर्न आउट टू बी राइट इन दैट इंस्टेंस वेयर द ड्रग फेल्ड, एंड आई प्रीटी मच फील द सेम अबाउट this antibacterial product by Wockhardt, and they have multiple candidates, WCK 6873, 5222, so on so forth. But ये एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि वोकहार्ट ने एक्चुअली बेस बिजनेस थोड़ा टर्न अराउंड किया है, so they've turned profitable on their base business, which earlier they were loss making because of they were bleeding heavily with the US FDA issues that they had. So merit should be given where it's due. I think Korakiwala has done a phenomenal job in the last 2 years in terms of turning around the generic part of the business. But is that business worth the current market price or more? Probably not. At least in my analysis, not. So current market price is definitely building some upside from all these NCEs, antimicrobial NCEs, which upside is, I think, doubtable. I mean, if it comes through, it will be much bigger than what is being currently built in. But if it doesn't come through, then the current market price is overstated. और नहीं नहीं, करेक्ट। और सुवेन लाइफ की ये जो गलतियां हैं, आप पुरानी एनुअल रिपोर्ट 2023 की अगर उनकी पढ़ोगे, तो उन्होंने एक एक गलती को अपनी एक्सेप्ट किया और डॉक्यूमेंटेड है वो, कि हमने Yes, क्लिनिकल ट्रायल्स की डिजाइन ही गलत करी थी। अभी कौन yes, सा मैनेजमेंट है जो इस तरीके से आके बोलेगा कि भाई yeah. हमसे गलती हुई थी क्लिनिकल ट्रायल्स की डिजाइन में, हमको पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है। ये सब उनका एनुअल रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है पिछले साल की। अरे सर 2006-7 में ग्लेनमार्क का मॉलिक्यूल ग्लेमिलास्ट रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल, आप देखो ग्लेनमार्क 3 दिन लगातार अपर सर्किट पे था, 20%, 20%, 20%, बिकॉज फेज 3 का ग्लेनमार्क बोला था पॉजिटिव रीडाउट्स आ रहे हैं, इंटरिम रीडाउट्स बोलते हैं उनको, पॉजिटिव रीडाउट्स आ रहे हैं। तो स्टॉक वाज 3 days कंटिन्यूअसली अपर सर्किट 20%. What happened to Glenmark after that? The drug failed. What happened to Glenmark stock after that? It did not recover for 7 years.
7 साल तक स्टॉक को प्राइस टच नहीं किया जो उस दिन टच किया था जब ग्लेनमार्क ने ओग्लेमेलास्ट का डेटा को बोला था कि बहुत जबरदस्त आ रहा है. एंड इट वाज अ रेस्पिरेटरी ड्रग, नॉट लाइक अ करेज, मतलब ऐसा कोई बहुत रेयर इंडिकेशन नहीं था, बहुत ही जनरल एस्थमेटिक और सीओपीडी का ड्रग था, एस्थमा और सीओपीडी. तो बट सो आई मीन मेनी पीपल हैव मेड दिस मिस्टेक इन द पास्ट, बिलीविंग कि भाई भारत से आ जाएगा और हिट हो जाएगा और हम मल्टी बैगर बना लेंगे. सो फार इट हैजंट वर्कड एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज. इनफैक्ट इन ग्लेनमार्क्स केस दे वर एबल. Sorry, Aditya, we lost you. हाँ, कैन यू हियर मी नाउ सजल भाई? हाँ 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 हाँ, बैक हाँ, ऑन. मैं बोल रहा हूँ उस जमाने में तो मैं ग्लेनमार्क वाला बात सुना क्या आप लोगों ने, ओग्लेमेलास्ट? हाँ हाँ. नहीं, Yes, लेकिन हाँ. sir. पूरा नहीं, आखिरी के 20 सेकंड्स. हाँ, तो ग्लेनमार्क ने बेसिकली ओग्लेमेलास्ट का जो इंटरिम रीडआउट था फेज 3 का वो रिलीज किया था कि हमने इंटरिम रीडआउट रिलीज किया है, मॉलिक्यूल फेज 3 में जबरदस्त जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. एंड इट इज एस्थमा सीओपीडी. एस्थमा सीओपीडी इन दोस डेज यूज्ड टू बी आई थिंक 11-12 billion मार्केट. मोंटेलुकास्ट वगैरह वर दी लीडिंग ड्रग्स. एंड they were Advair was the leading drug and they said it is better than Advair, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा. द स्टॉक हिट 3 अपर सर्किट्स, 20-20 टका का उस टाइम पे अपर सर्किट 3 लगातार मारा. स्टॉक 2005-6 में देखिएगा जाके उसका शेयर प्राइस, आपको मजा आएगा. एंड after that, the drug obviously failed. In fact, Glenmark was also able to outlicense the drug. So they outlicensed it to Sanofi for Europe, to Forest Labs for North America, and to T से एक Japanese company है for Japan. T से नाम है, I forget the name. Tanaka Pharma था, क्या pharma था, ठीक है. So one company in Japan also. So they outlicensed the molecule in 3 geographies, which tells you that had some merit to it. राइट. उसके बावजूद वो ड्रग फेल हो गया because end of the day a drug which is in phase 3 has broadly got 30 to 40% chance of clinical success. Commercial success is another 40-50% chance. So if you compound the two probabilities, you are looking at a 9 to 15% chance of a commercial success for a molecule which is currently in phase 3. तो प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड बाय ऑल दिस. आई मीन मैंने ये लेसन सीखा. मैं तो ग्लेनमार्क का एम्प्लॉय था जिन दिनों उसका ग्लेमेलास का चल रहा था, तो मैंने अंदर से भी देखा है. This is, I mean, it's a bit of a long stretch, if you ask me. So those are my 2 cents. And guys, I just came to the spaces because I wanted to say hi and happy Teachers Day to everyone. I'm with my family today, so I'm sort of gonna log out. Thank you, Prince, for having me, and Sajal bhai, great speaking to you. Let's connect. Thank you, Aditya. Thank you for coming. Thank you. Arre, my pleasure. I just Thanks, couldn't say no, Aditya. yaar. Chal, Yeah. bye. Bye. So, Sajal कितने sir, कितने capping, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी यार, क्योंकि बहुत, आई थिंक वी हैड एन आवर, सो मे बी सम मोर टाइम एंड देन या sir, quick, हाँ मैं क्विकली सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ. एक तो सर रैपिड, चार एक पांच रैपिड बुक्स को रैपिड लेकर फायर टाइप क्वेश्चन. का कर लेते हैं अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो. हाँ, 4-5 फेवरेट बुक्स जो हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन, और टॉप बैट फ्रॉम योर हॉकी टीम, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन आप इन दोनों का, या बेस्ट एनसी कंपनीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ऑल्दो वी हैव कवर्ड इन द पास्ट, बट देखो अगेन तो क्विकली वी देखो, कैन आंसर. बुक की तो कोई लिमिट नहीं है. टॉप बुक इज अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. अभी टॉप बुक अगर मान लो आप इनिशियल बिगिनर हो, तो आप मान लो कोविड के बाद मार्केट में आए हो, तो आपके लिए टॉप बुक्स मेरे हिसाब से होंगी. आप ज्यूरिक एक्सियम्स पढ़ो, वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, कार्लसन साहब की बुक है वो पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेम एज एवर, मे बी 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, पैट डोर्सी साहब की किताब है वो पढ़ो. अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आप मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स करके एक बुक आई थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसमें सारी चैप्टर्स अच्छे हैं, बट मेरा जो फेवरेट है वो केनेथ अंड्राडे साहब का एक चैप्टर है. वो आपको साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स कैसे प्ले करनी चाहिए, वो एक चैप्टर में ही आपको समझ में आएगा. उसी चैप्टर को आप 3-4 बार पढ़ो तो वो आपको काफी फायदा देगा. तो ये तो मेरे हिसाब से एज बिगिनर लेवल पे बुक्स हो गई. आप अगर थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे हो कि आपने एक साइकिल देख चुके हो मार्केट की, देन आई थिंक यू शुड लुक एट मोर लाइक ये माइकल मोबासिन साहब की बुक्स हैं जैसे मोर देन यू नो. आप इनकी हावर्ड मार्क्स की जैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मार्केट साइकिल्स, या उनके जो मेमोइर्स हैं वो आप पढ़ो. गौतम बेद साहब की एक बड़ी अच्छी किताब है द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है बुक, एंड टू एंड. तो उसमें आपको मंगा साहब
भी मिलेंगे, वॉरेन भी मिलेंगे, एक जनरल परसेप्शन है वो अच्छा है। इनकी पुलक प्रसाद साहब की किताब है व्हाट आई लर्न फ्रॉम डार्विन, तो वो भी मिड लेवल पे मैं कहूँगा कि वो अच्छी है। उसके आगे अगर आप निकल रहे हो कि अब आप 20 साल से मार्केट में हो, आपने 3 4 5 साइकिल देख ली है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इंसर्टो सीरीज पढ़नी चाहिए, नसीम तलेब साहब की। उसमें एंटी फ्रेजाइल है, फूल्ड बाय रैंडमनेस है, ब्लैक स्वान है, इस तरह की किताबें हैं। आपको बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन की, या आपके ये पुअर चार्लीज एल्मेनाक, ये सब बुक्स हैं। या रॉबर्ट ग्रीन साहब करके एक बड़े अच्छे ऑथर हैं, तो उनकी डेली लॉज, मतलब तो डिपेंड करता है कि आप अभी अपनी जर्नी में कहाँ हो। और डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर इन योर जर्नी, मेरे हिसाब से आप 20 25 साल अगर आपको मार्केट में हो जाते हैं, तो आप इन्वेस्टिंग की किताबें नहीं पढ़ते हो, बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़ते हो, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू हिस्ट्री, स्ट्रेटजी बुक्स, बायोग्राफीज, उस टाइप की बुक्स आप पढ़ने लगते हो। एक विलियम ग्रीन साहब की बड़ी अच्छी बुक है रिचर वाइजर हैप्पियर, तो वो भी मैं कहूँगा मिड मिड लेवल पर ही बोलूंगा वो, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। नसीम सलेह साहब की बुक में लोगों को कभी कभी शिकायत रहती है कि उनको समझ में नहीं आता है, बट मुझे भी नहीं आया था पहली बार समझ के, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा डीप लिखते हैं वो। आप अगर 3 4 बार बुक पढ़ोगे, इतना पेशेंस है आपके, तो वो आपको ऐसा समझ में आएगा कि फिर वो छूटे नहीं छूटेगा। तो ये तो बुक्स की बात थी। 2 3 और रैपिड क्वेश्चन क्या थे? एक हाँ, टॉप बैट फ्रॉम हॉकी टीम। यार हॉकी टीम के टॉप बैट्स तो उसमें हॉकी टीम में लिखे होंगे, और वो तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, तो उसमें बायोकॉन भी था, उसमें सिंजीन भी था, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे जो स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, उसमें एफडीसी स्टार्टिंग 11 में नहीं था। तो अब टीम तो देखो ऐसा है ना कि कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो वो अंदर आएगा, वो बाहर जाएगा। जब सेंसस की टीम, जो 20 साल पहले सेंसस की टीम थी, वो आज नहीं है ना, तो टीम पे पैसा लगा के तो पैसा नहीं बनेगा। यू हैव टू बाय समथिंग विच हैज गॉट वैल्यू। और सबसे अच्छा धंधा लेने से पैसा नहीं बनता। मैं 3 साल पहले डिवीज ले सकता था ना, डिवीज सबसे अच्छा धंधा था 3 4 5 साल पहले, बट मैंने न्यूलैंड क्यों लिया? न्यूलैंड न्यूलैंड सबसे अच्छी एपीआई की कंपनी नहीं थी ना, परसेप्शन तो में तो कम से कम नहीं थी, मेरी नजरों में थी, वो अलग बात है, मैं तो बेवकूफ हूँ, बट मार्केट के परसेप्शन में तो नहीं थी। तो मुझे डिवीज लेना चाहिए था, या मुझे कोई और कंपनी लेनी चाहिए थी। वो मैंने ना लेके मैं न्यूलैंड मैंने लिया। तो आप पैसा तब कमाओगे जब आप मार्केट से अलग व्यू रखते हो, और आपका व्यू डेटा के हिसाब से बेटर हो। तो न्यूलैंड में सबको अलग कुछ दिख रहा था, मुझे कुछ अलग दिख रहा था, और मैंने इसीलिए पूरा डॉक्यूमेंट करके भी रखा हुआ है कि भाई मुझे क्या दिख रहा था। बुक में भी मैंने लिखा है, पब्लिकली भी मैंने काफी चीजें बोली हुई हैं। तो आप कॉन्ट्रेरियन होके पैसा नहीं कमाते हो। व्हेन यू आर कॉन्ट्रेरियन एंड योर डेटा इज करेक्ट एंड मार्केट एग्रीज विद योर डेटा एट सम पॉइंट, दैट्स दैट्स हाउ यू मेक मनी। तो वो आपको देखना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप टेक्निकल चार्ट्स देख के पैसा कमा सकते हो, या फिर आप ट्रांसक्रिप्ट्स और एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, मैनेजमेंट के इंटरव्यू को फॉलो करके, मैनेजमेंट की नीयत को समझ के वहां से पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा तीसरा कोई और तरीका कम से कम मुझे नहीं पता है। राइट सर, लास्ट थ्री क्वेश्चंस एंड आई विल कीप इट क्विक। एक तो ये है कि इफ यू आर अ सीडीएमओ फंड मैनेजर एंड अ धोनी फैन, विच 7 businesses you pick and why? नहीं साहब, धोनी के तो हम फैन हैं, हम श्रीजेश साहब के भी फैन हैं, हम कोहली साहब के भी फैन हैं, हम रोहित शर्मा के भी फैन हैं। और हम मतलब फैन की तो अलग बात है। अगर मैं फंड में, देखो मैं फंड मैनेजर हूँ तो मैं अलग तरीके से सोचूंगा। मैं कैसे सोचूंगा मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई मैं पैसा कैसे गंवा सकता हूँ क्लाइंट का, हाउ कैन आई लूज मनी, और मैं वो नहीं करूंगा, पहली चीज। तीसरी दूसरी चीज मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे को 500 करोड़ लगाने हैं, मुझे लिक्विडिटी भी चाहिए। तो मैं इलिक्विड एसेट्स में तो नहीं लगाऊंगा, तो मैं सोलारा में पैसा नहीं डालूंगा। इलिक्विड एसेट है ना, मैं उससे निकल सकता हूँ। मैं मुझे चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। और अगर मैं गलती से मान लो 3 4 महीने कोशिश करके चढ़ भी गया, तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा।
तो अगर मैं फंड मैनेजर हूँ तो मैं सुलारा नहीं लूंगा, मैं डिवीज लूंगा, मैं लिक्विड एसेट्स लूंगा कि जहाँ पे मुझे कम से कम दिन का 5-10 लाख का वॉल्यूम हो, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो। तो फंड मैनेजर के सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि फंड मैनेजर की फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मेरे को 2, 4, 5 करोड़ कहीं लगाना है या उससे कम अमाउंट लगाना है, तो मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तब मैं, और मेरा पर्सनल प्राइवेट पैसा होगा, मैं 3 से 5 साल के होराइजन के लिए लगाऊंगा, तो मैं फंड मैनेजर के जैसे नहीं सोचूंगा। वहां मैं न्यूलैंड का जैसा अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि जहां मार्केट का परसेप्शन नेगेटिव हो, अर्निंग्स लो हो, उन अर्निंग उस लो साइकिल में, लो बिजनेस साइकिल में वो मल्टीपल भी लो मिल रहा हो, और वहां मैं एक्यूमुलेट कर पाऊं, एंड देन आई गेट अ रिकवरी इन दी बिजनेस परफॉर्मेंस। ऑन दैट रिकवरी आई गेट अ बेटर मल्टीपल। वहां मेरा 5, 10, 15 गुना पैसा बनेगा। तो वो मेरा माइंडसेट रहेगा। And I will embrace the volatility and randomness and lumpiness along the way, क्योंकि मेरे को ये डर नहीं रहेगा ना कि अगर स्टॉक कल को 30%, 40% गिर गया तो मैं क्या करूंगा। मैं और ले लूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है ना। तो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बट फंडामेंटली स्पीकिंग, आप दो ही तीन तरीके से पैसा कमा सकते हो। वो इनविटेशन कार्ड वाला टेम्पलेट, कि जब मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखे, बिजनेस में ट्रैक्शन दिखे, आप वहां पे लो, चाहे स्टॉक आपको 20% ऊपर मिले, कोई बात नहीं है। एक तो वो तरीका है। दूसरा, कॉमन सेंस, गुड मैनेजमेंट। स्टार्ट सो व्हाट इज अ गुड मैनेजमेंट? स्टार्ट डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बैड मैनेजमेंट, एंड व्हाट्स लेफ्ट इज गुड इनफ। अब मेरे को ग्रेट मैनेजमेंट नहीं चाहिए। सो वी ऑफ्टन मेक मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग इन फेयर मैनेजमेंट एट लो वैल्यूएशंस वर्सेस द टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट एट ridiculously हाई वैल्यूएशन। तो मुझे 15 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे अगर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट मिल रहा है, मुझे वहां पैसा, मुझे नहीं लगता मैं पैसा कमा पाऊंगा। मुझे अगर फेयर मैनेजमेंट लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जहाँ परसेप्शन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, वहां मेरा बहुत पैसा बन जाएगा। और मुझे तो 3-4 गुना अगर मिल रहा है 3-4 साल में, मेरे लिए उतना काफी है। तो एक तो वो मैनेजमेंट की ड्यू डिलिजेंस मस्ट है, क्योंकि 99% क्वेश्चन पेपर वही है। Then, once you're through with that, look for good sustainable business that can survive a long drawn down cycle। क्योंकि आपको पता नहीं है कि डाउन साइकिल कितनी लंबी चलेगी, तो बिजनेस के बैलेंस शीट में, कैश फ्लोज में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉल पिया हुआ होना चाहिए वो बिजनेस टू सरवाइव। ठीक है। एंड देन वैल्यूएशन, मेरे को तो 10 टाइम, जैसे सुवेन है, सुवेन, मैं ये देखता हूँ कि व्हाट इज नॉट चीप। डिसेंट वैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स नॉट चीप वर्सेस व्हाट्स एक्सपेंसिव। सो Suven at 18 times price to sales. So when I say Suven, I mean Suven plus Cohens combined at 18 times price to sales is expensive. Period. मेरे को पता है Suven का बिजनेस की वर्थ क्या है। तो 18 times price to sales पे वो एक्सपेंसिव है। एंड आई डोंट केयर व्हाट मार्केट इज सेइंग, बिकॉज़ मार्केट तो 2021 के आईपीओस में भी मेरे को कहानी सुना रहा था। तो मार्केट तो मैनिएक है, हमेशा से है और आगे भी रहेगा। तो उसको तो साइड में छोड़ो। मार्केट ने तो न्यूलैंड को भी नीचे रखा हुआ था, गटरलैंड में था ना। तो मार्केट की छोड़ो। तो सुवेन एक्सपेंसिव है आज की तारीख में। सुवेन एट 10 टाइम्स प्राइस टू सेल्स विल नॉट बी चीप। 18 टाइम्स पे जहां आज है, वहां तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन 10 टाइम्स पे भी चीप नहीं है। हाइकल एट 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स इज बिलो फेयर वैल्यू, मेरे को पता है। एंड दैट में नॉट गेट री रेटेड टुमारो। ठीक है, मेरा अपना पैसा है, मैं होल्ड करके बैठूंगा शांति से। मैं तो न्यूलैंड में भी शांति से ही बैठा था। तो इसीलिए मैंने हाइकल और न्यूलैंड का आज वो कंपैरिजन डाला है। और मैं 2 साल के लिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों को, मैं तो 25 साल के लिए कंपेयर कर रहा हूँ, कि भाई 25 साल का डेटा है वो 1-2 साल का डेटा नहीं है। तो हर बिजनेस की अपनी साइकिल होती है। हाइकल जो 5 साल पहले कर रहा था, जिस ढर्रे पे चल रहा था, उस ढर्रे पे आज नहीं चल रहा। रिजल्ट आते आते और 5 साल लगेंगे। मैंने तो खुद उनके ट्रांसक्रिप्ट पे आप जाके पढ़ना, उसमें 2029 मैंने बोला है कि आपके मार्जिन 2029 तक डिफरेंट होंगे। तो वो एक दिन में ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। न्यूलैंड में भी 2018 से आप उसको फॉलो करो तो कोई चेंज नहीं हुआ। 2019 में भी, 2022 में भी वो रो रहे थे। तो बिजनेस की साइकिल को प्ले आउट करने में समय लगता है। तो मेरा जो वैल्यूएशन का क्राइटेरिया है वो वही है, मैं डिसेंट वैल्यूएशन लेता हूँ। मुझे महंगा लेने से नफरत है, इसीलिए मैं आईपीओज नहीं लेता हूँ।
क्योंकि उसको लिपस्टिक लगा के चमका के दुल्हन के जैसे वो सब नहीं करना है। तो एंड देन स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल सेक्टर टेलमेंट, इन क्राइटेरियाज के साथ आपको अप्रोच करना है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये 3 स्टॉक अगले 10 बैगर हैं या 3 स्टॉक, क्योंकि सच अ रैंडम स्पेस, रोज तो कोई ना कोई न्यूज फ्लो से सिचुएशन चेंज होती है। इट्स लाइक अ मूवी। आज मैं आपको कुछ बोल दूंगा, कल आप आंख बंद करके ले लोगे, परसों स्टॉक गिर जाएगा, उसके बाद आके आप ट्रोल करोगे। सो लेट्स नॉट डू दैट। idea is to learn the framework, and framework in terms of what not to do. स्टार्ट एलिमिनेटिंग। जो पुलक प्रसाद साहब की बुक आप लोग पढ़ो, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की, नसीम तलेब साहब ने वी आर नेगेटिवा की बात करी है। तो व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, कि कैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। कि भाई टॉप ऑफ द साइकिल में जाके आपको टॉप पीक वैल्यूएशन पे कुछ नहीं लेना है, क्योंकि थप्पड़ पड़ेगा तो फिर बहुत जोर से पड़ेगा। आपको बॉटम साइकिल, बॉटम बिजनेस साइकिल, जहां आपको पेसिमिज्म दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि 2-3 साल से यहाँ पैसा नहीं बना है, वहां पे अगर आप पोजीशन करोगे तो आउट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। दैट्स हाउ आई वुड टेंड टू प्ले। सर लास्ट दो क्वेश्चन है पक्के से। एक कैपलिंग पॉइंट पे काफी सारे क्वेश्चंस पहले भी थे, अभी भी आ रहा है, क्या कुछ उसमें कुछ डेवलपमेंट है, अच्छा धंधा यार वो है या कुछ कम्प्लीटली देखो डाइवर्सिटी डिफरेंट होगी? सेक्टर है। हर फार्मा में मैं वही बोलता हूँ ना कि एवरी बिजनेस इज लाइक अ डिफरेंट सेक्टर। अगर मैं अजंता फार्मा के बारे में कुछ जानता हूँ, डजंट मीन कि मैं कैपलिन के बारे में जानता हूँ। अगर मैं कैपलिन के बारे में जानता हूँ, डजंट मीन कि मैं कोपरन के बारे में जानता हूँ, बिकॉज एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। तो आप धंधे को समझो, क्योंकि देखो मेरे पास तो एनालिस्ट की टीम है नहीं कि मेरे पास 50 लोग हैं, 5 लोग मैंने अलग अलग बिजनेसेस में लगाए हुए हैं। तो मुझे जरा डीप में जाके धंधा समझना पड़ता है। बट टू माय नॉलेज कैपलिन ने कुछ अच्छा किया है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्रोबेबिलिटी, अगेन गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे भी जाएंगे या जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या वैल्यूएशन पे उनको अपना बना रहे हो। तो बहुत हाई वैल्यूएशन, आप, मुझे नहीं पता कैप्टन की क्या वैल्यूएशन है, बट मैट्रिक वही है, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, ईवी टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये वाले मैट्रिक पे आप एसेस करो उसकी लॉन्ग टर्म मीन से वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है। एंड देन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, कि अब कैपलिन पॉइंट का आपको ये भी पता होना चाहिए कि नियरेस्ट पीयर कौन सा है। एग्जैक्ट रेप्लिका तो आपको मिलेगा नहीं, मिरर इमेज नहीं मिलेगी, एक इसके जैसा दूसरा कोई बिजनेस उसके रिलेटिव में ये कैसा है, और एब्सोल्यूट बेसिस पे कितना सस्ता है, उसके हिसाब से फिर आप पोजीशन करोगे तो पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। गारंटी चाहिए तो बैंक में एफडी कराओ, एफडीसी में गारंटी नहीं है, बैंक की एफडी में गारंटी है। Right, sir. Last question, interesting one. If someone put a gun on your head and asked to sell Loris and choose any one other stock, which one it would be, or you need to buy that in one tranche is the भाई condition, it मेरा says. डिफॉल्ट इंस्टिंक्ट तो ये रहेगा कि मैं किसी तरीके से वो गन झपट के उसकी तरफ पॉइंट कर दूं और उसका पैसा भी ले लूं। मेरा मेरा डिफॉल्ट इंस्टिंक्ट तो वो रहेगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मुझे लॉरस बेच के कुछ इन्वेस्ट करना है, तो फिर मैं हो सकता है इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दूं। कि भाई मैं बोलूंगा कि मैं इंडेक्स का ईटीएफ ले लेता हूँ, या मैं फार्मा 20 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अच्छे फार्मा कंपनीज अगले 2-3 साल की साइकिल में अच्छा करेंगे। तो मैं कहूंगा कि भाई मैं एक बास्केट बना लेता हूँ। अब सिंगल स्टॉक तो मेरे समझ से मैं लॉरस बेच के, कोई आज की तारीख में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा ऐसा सिंगल स्टॉक में मेरा उतना कन्विक्शन हो कि जहां मुझे उतनी लिक्विडिटी मिले कि मैं इतना सारा मतलब माल बेच के कहीं और लगाऊं। तो यार वो तो नहीं मुझे पता है, बट मेरे हिसाब से हेल्थ केयर इन जनरल, हॉस्पिटल्स, केयर होम्स, सीडीएमओ, कॉम्प्लेक्स एपीआईज, ब्रांडेड फार्मा एज अ बास्केट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। इसमें कुछ कंपनीज अच्छा करेंगी जिनके मैनेजमेंट्स अच्छे हैं। तो आज की तारीख में मेरा उतना कन्विक्शन कहीं पे भी नहीं है जितना मेरा कन्विक्शन लॉरस में है। और लॉरस में मेरा कन्विक्शन क्यों है, उसका जवाब एंड ऑफ अप्रैल या मई में जब हम लोग स्पेसेस या पॉडकास्ट करेंगे ना, तब पता चलेगा।
तो कोई रिकमेंडेशन है, कोई वो नहीं है, सारे बायसेस हैं। मैं न्यूलैंड पे बहुत बुरी तरीके से बायस था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला उस समय। तो ठीक है, वो अपने अपने बायसेस होते हैं, एंड समटाइम्स वी आर रॉन्ग, समटाइम्स वी आर राइट। That's the part and parcel of that's what makes investing such a great fun and such a great sport. You can't win all the time. As long as I win more in terms of magnitude, so ultimately magnitude important है कि आपने कितना डेल्टा ऊपर की साइड में कमाया और कितना आपने नीचे की साइड में गंवाया. So if you lose few lakhs and you win few crores, you are better off over the cycle, na? So that said, I mean, again a disclosure, disclaimer that ये सब गपशप है. Don't take it seriously. None of this is investment advice by any stretch of imagination. Do your own due diligence and God bless. Do well. Thank you. That's all from my side, Prince. Thank you. Thank you so much, sir, and happy Teachers' Day once again. Thanks for taking out time and helping with our questions. And we also learn along with, as you always say. नहीं Thank you नहीं, so एंड much. लाइकवाइज यार, आप लोग के क्वेश्चन से हमको भी सीखने को मिलता है. Our imagination and competence is also challenged. So it's always a mutual learning. Thank you so much for participating and joining. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Good night.